براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو میں جو چین نے مدد کی ہے، میں چین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور چین کی دوستی جو ہمالیہ سے بلند ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور WHO کو خاص طور پر ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں، دوسرے سلسلوں میں، اور آج کووڈ ویکسین کی جو تیسری لہر ہے وہ اس قوم نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں نہ صرف اس پر قابو پایا ہے بلکہ قوم کو حوصلہ ملا ہے، اور اسلام آباد میں خاص طور پر پہلے یہ 100 سے کراس کر چکے تھے یہاں ڈیتھ جو ہے، اب یہ 15 20 یا 30 سے زیادہ نہیں ہے، اور پیشنٹ بھی کم ہوئے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کی ماڈرن سٹی ہے، اور میں تمام ہیلتھ کیئرنگ کو، لیبارٹری سے لے کے، نرسز سے لے کے، ڈاکٹر سے لے کے، جو ڈاکٹروں نے جانیں دی ہیں وہ شہادت کا رتبہ ہے انہوں نے، کیونکہ جن ڈاکٹروں نے جانیں دی ہیں انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے قوم کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ میں تمام ہیلتھ سے منسلک لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں WHO کے ریپریزنٹیٹیو کو کہوں گا جی ابھی میں اس کے بعد جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں سوال لے لوں۔ Your Excellency Sheikh Rashid and my dear sister Sayyida Shafaqa and Your Excellency Dr. Thank you very much for giving me the chance and privilege to come back again to Pakistan. I am really proud of visiting my country and to be among my people for maybe the third or fourth time. And each time I come, I see a lot of success stories that alhamdulillah I can take back to my colleagues in the regional office and share it with other member countries. Pakistan is a large country. It is a highly populated country. And we all know that COVID, for almost a year and a half now, was a big, huge, global and national challenge. It affected not only health, but it affected economy, social, even sometimes security. But mashallah, from the statistics and reports I am getting from the country office here under the leadership of Dr. Balita and the great work of the team, it has almost gone through the third wave, and the work done by the Minister of Health and other government sectors supporting Minister of Health is really something that we should really be proud of. I know that the challenge is still there, but with optimism we can overcome this challenge with very minimal loss. COVID is, as I said, affecting every dimension of our life, but working together, moving as the whole of government under the wise leadership of the Prime Minister, Mr. Imran, and the support of other ministers, the whole of society, every citizen is involved, engaged and empowered to protect their own health. Inshallah, we will be able to overcome the COVID-19 challenge. And at the same time, we should really focus on other services that are important. So thank you very much all for the work that you are doing. Thank you, Your Excellency, for the support that you are providing to the Minister of Health and all relevant, departments. And I'm sure you will overcome this challenge, inshallah, sooner than later. Thank you. کوشچن ہے تو یس اسلام آباد کی آبادی کو تمام ویکسینیشن کب تک مکمل ہو جائے گی؟ ایک ٹارگیٹ تھا 2 ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گی، اب نئے ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے تو کیا 2 ماہ میں یہ؟ دیکھیں پاکستان میں ویکسینیشن جو ہے الحمدللہ اگر آپ ارد گرد کے ملکوں کو دیکھیں اس سے بہتر ہے، اور لوگوں میں اب رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ ویکسینیشن کے خلاف تھے، ویکسینیشن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور اب ویکسینیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ ویکسینیشن انشاءاللہ تعالی کم سے کم مدت میں نے پہلے کہا ہے NCOC کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں، ان کے جنرل حماد کو اور اسد عمر کو، اور خاص طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو، کہ جنہوں نے اس قسم کی اکانومی میں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، مہاراشٹر میں دیکھیں، اتر پردیش میں دیکھیں، دہلی میں دیکھیں، UP میں دیکھیں، CP میں دیکھیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نو ویکسینیشن فار 7 days، اور خاص طور پر اتر پردیش میں دیکھیں وہاں کیا صورت حال ہے۔
सो पाकिस्तान में किसी जगह बोर्ड नहीं लगा हुआ कि नो वैक्सीनेशन, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है वेलकम वैक्सीनेशन। शेख साहब ये बताइएगा कि जो शेख साहब ये बताइएगा कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, लोग कहते हैं कि फाइजर जो है वो बाहर बैरून मुल्क जाने वाले लोगों को मिलती है लेकिन साइनोफार्म जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है। साइनोफार्म जबरदस्त वैक्सीन है, आई सल्यूट दी चाइनीज कॉर्पोरेशन। और फाइजर का जो प्रॉब्लम है सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट में वैक्सीनेशन का, इमरान खान साहब इसको खुद हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट में भी कहा कि मैं इस पर मुतल्लिका मुल्कों से बात कर रहा हूँ। शेख साहब ये बताइएगा, आप जब आए तो बड़े चैलेंजेस थे सियासी, तमाम चैलेंजेस पे आपने ओवरकम कर लिया, अब जो है वो तरीन ग्रुप आ रहा है, इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन कह रहा हूँ आगे सामने। देखें, इस मुल्क में मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान की, सॉरी टू से। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी और आज 11 तारीख को बजट पेश हो रहा, और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि मज़दूरों और की तनख्वाहों में ख़ास तौर पर पेंशन में इजाफा होगा। सर बिलावल ने जो कहा कि आपकी गवर्नमेंट ने जो है नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, हालांकि वो मुजरिम थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरख्वास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। सो मिनिस्ट्री में, इंटीरियर में उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। लास्ट 3 क्वेश्चन। अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जाता है। देखें, JUI जाने और F जाने और नून जाने, ये आपस में जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला हो रहा है। लास्ट सेकंड, जस्ट अ मिनट, लास्ट आई सी अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं है, बल्कि उसको अपने अंदर कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना, जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। गुज़श्ता दिनों पुलिस अहलकार शहीद हुए हैं, जिस रोड पे शहीद हुए 7 मजीद शहीद हुए, सहूलत की कमी है। इंशाअल्लाह ताला हम ईगल स्क्वाड ला रहे हैं, 150 मोटर बाइक की एक नई और 4 गाड़ियां हमारे पास हैं, 16 और ला रहे हैं। पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पुलिस की एफिशिएंसी बेहतर बनाएंगे। यस, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं देख रहा, इतनी नाअहल, नालायक, निकम्मी अपोजिशन मैंने नहीं देखी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी तनख्वाह रोक लेंगे, दुकानदार भी वैक्सीन लगवाएं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में अमवात की शरह कम और रिकवरी की तादाद ज़्यादा है। वज़ीर आज़म को कहा है कि असद उमर से कहें कि कराची में एहतियात की ज़रूरत है। 3 सूबों में तरक्की हो रही है, इस पर खुशी है, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? ख़त में लिखा है, लेकिन लगता है कि बहरे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। सारे सरकारी मुलाजमीन जून के महीने में उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हम उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कि वो भी इस तरीके के कुछ स्टेप्स लें। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। इसलिए इंशाल्लाह ताला हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात का असर, मोहलिक वबा की शिद्दत में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह कम होकर 3.10% पर आ गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,629 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो गई। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के पहले से चौथी, छठी और 7वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर जनरल विफाकी निज़ामत तालीमात ने इम्तिहानात से मुतालिक समरी भिजवा दी है। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भिजवाई गई है। 5वीं 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल विफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा।
बहुत हो गए मजे, अब स्कूल जाने की तैयारी कर लो। मुल्क भर में 5% से कम मस्बत शरह वाले अजला में तालीमी इदारे 7 जून से खुल जाएंगे। NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमजोर होने लगा, पाबंदी और बंदिशें खत्म होने लगी। 1ली से 8वीं क्लासेस स्पीड से शुरू होंगी। NCOC ने तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया, मुल्क भर में कोरोना के 5% से कम शरह वाले अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 7 जून से खुल जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन भी कराने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने 10 जुलाई के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का ऐलान भी कर रखा है। सिंध में स्कूल्स खोलने का फैसला नहीं किया जा सका। कोविड की पहली और दूसरी लहर के बायस सूबा सिंध में कमोबेश अमली तालीम का सिलसिला 455 रोज गैर फाल रहा। 27 फरवरी 2020 से मई 2021 तक स्कूल से लेकर जामियात तक तदरीसी अमल और इम्तिहानात का सिलसिला ऑनलाइन बरकरार रखा गया। तमाम तालीमी इदारे बदस्तूर ऑनलाइन तालीम फराहम कर रहे हैं। तमाम जामियात प्रोफेशनल तालीमी इदारों में ताहाल ये सिलसिला बरकरार है। 365 दिन तो कम है, मेरे ख्याल है उसमें शायद 3 महीने आप और ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ तकरीबन 450-500 दिन हो रहे हैं। और ये IBA में मैं बैठा हूँ, मैं तो इंतजार में हूँ कि स्टूडेंट्स आएँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, IBA जो है दोबारा बहाल हो। निजी व सरकारी स्कूलों में सिर्फ असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाया गया है, जहाँ असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा इम्तिहानी पर्चों की तैयारी और हफ्तेवार बुनियाद पर स्कूल आने वाली कॉपियों की जांच पड़ताल करते हैं। हमारी तो यही दरख्वास्त होगी कि जो इदारे वैक्सीनेटेड होते जा रहे हैं, खुदारा उनको खोल दिया जाए, बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सूबे सिंध में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बाद तालीमी इदारों को खोलने का फैसला ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के अमल से भी मशरूत किया गया था। वज़ीर तालीम कहते हैं कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। भारत ने वबा के दौरान महंगाई को 4.29% काबू किया। बांग्लादेश ने 5.54% तक काबू किया। भारत बांग्लादेश महंगाई को काबू कर सकते हैं तो पाकिस्तान में शरह 10.9% क्यों है? माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें 110% तक बढ़ाईं। इस दौरान PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब अफसोसनाक तौर पर कीमतें कम करके उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि ग्रीन डिप्लोमेसी दुनिया के साथ ताल्लुकात के नए रास्ते बना रही है। पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी और डैम्स बनाने के लिए पहली $500 मिलियन ग्रीन यूरो बॉन्ड फाइनेंसिंग भी मंजूर हो चुकी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, बॉन्ड चैलेंज समेत आलमी माहौलियाती फोरम्स पाकिस्तान की पजीराई कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अमली इक़दामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वो घी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, किस तरह उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली यहाँ पर नहीं आएगा। ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। इनका एजेंडा जो है वो एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लोग इनकी चोरी का, करप्शन का भूल के लोगों को और तरफ लग जाएं। कांटों की सेज मिली थी, जगह जगह सागडार माइंस लगा के गए थे। अभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है, इसको ना इकोनॉमी की अलिफ बे का पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कभी जो है वो TMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। हमने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ने दी। इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुर्म करके गए हैं कि 45% बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा कर रहे हैं। 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए हैं। तलवार हमारे ऊपर लटका के चले गए। 2023 में आप इमेजिन करें कि 1455 अरब रुपया इस कौम ने अदा करना है। बिजली कारखाना बनाए ना बनाए, आप लें ना लें, इस्तेमाल करें ना करें, तो शहबाज शरीफ जिसने धेले की करप्शन नहीं की, ये कौमी जुर्म जो है वो आपने किया है, ये कितने पैसों के एवज किया है?
मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा कि मईशत से मायूसी के छटते बादल अपोजिशन की मायूसी में इजाफा कर रहे हैं। बिलाशुबा हुकूमती फैसलों और पॉलिसीज पर तामीरी तनकीद अपोजिशन का हक है। अपोजिशन जहनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। मुआशी और सिफारती महाज पर तारीखी कामयाबियां अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की आवाज़ में दुनिया भर में सुना जाता है। करप्ट अपोजिशन टोला किसी गलत फहमी ने ना रहे। अवाम करप्ट अपोजिशन टोले के झांसों से बहुत दूर आ चुके हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वफाकी वजीर अली जैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद यहाँ से ट्रैफिक जो PICT और ख़ास तौर पे क्लिंकर और कोल की ट्रैफिक है वो यहाँ से सारी अंदर जा सकती है। आपको वो मिल गया है, कंसल्टेंट ने NOC दे दिया आपको? जी सर, हमारे इंजीनियर ने कहा लीजिए 6000 PSI पे हम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से फिर क्लिंकर और कोल भरा हुआ भी लेके जाए, खाली एम्प्टी मत लेके जाएगा, लेके जाए। अगर उसने आपको दिया ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, और आपके इंजीनियर्स की जो टीम है वो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली हर वक्त वो मॉनिटर करते रहे। इसके मंथली वैल्यूएशन रिपोर्ट आप मिनिस्ट्री भिजवाएं, मैं आपको लिख के भिजवा दूँगा। सवाल पूछने तरह भाई। अली भाई, आपको तो ऐसा लग रहा है यानी बड़ी बेबस किस्म की वजारत लग रही है, यूँ लग रहा है कोई अपोजिशन लीडर हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या कोई आपकी नहीं चलती है यहाँ पे इस वजारत? देखें फैज भाई, इसी में शामिल ये करने के आप अभी जिस तरह से आप अफसरान से कह रहे हैं, लग रहा है कि वजीर तो आप है, सुनवाई आपकी अदारे में कोई आपकी बात नहीं सुनता। ऐसे अगर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ या ना दोनों है। अगर आप चाह रहे हैं ना कि मैं बड़ा कमज़ोर वजीर हूँ, चलें आप खुश हो जाएंगे समझ के। देखिए कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते, कुछ फालतू के काम हो जाते हैं और बहुत सारे काम हो भी गए। फॉर एग्जांपल ये अभी हम यहाँ से अगर आपके पास टाइम है हम जाएंगे, इधर फेरी टर्मिनल बन रहा है ये बिल्कुल वेस्ट वॉफ में, वो फुल स्पीड में हो रहा है, वो 3-4 महीने में हो जाएगा। वो भी हमारे ही 1.5-2 साल मुझे कैबिनेट और बाकी दूसरी वजारतों से NOCs में लगे। बहुत सारी NOCs लेनी होती है, क्योंकि खाली मैं नहीं सोच सकता कि बैठ के उठ गया कि जी फेरी चलानी है, ऐसे नहीं होता ना। इंटीरियर का भी उसमें रोल होता है, क्योंकि अगर आप फेरी चलाएंगे तो इमिग्रेशन भी होगी, कस्टम्स का भी रोल होता है, तो FBR का भी रोल होता है, एंटी नारकोटिक्स का रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स का, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी होता है, फिर सारे बहुत सारी लोगों के बैक एंड फोर्थ जाके ये काम होते हैं। ऐसे ये बादशाहत नहीं है कि मैं उठ गया और मैंने कह दिया कर दो हो जाए। हर एक का सिस्टम और प्रोसेस तरीके से चलती है हुकूमत। हाँ, ये आप कहते हैं कि सिस्टम अगर वीक है और बेहतर होने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फास्ट ट्रैक होने। हमारी वजारत के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर वो फाइल की जो मूवमेंट है वो पे चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मूवमेंट होती है, वो नाड़े वाली फाइलें अब नहीं आती। तो हमारे पास तो सिस्टम तेज हो गया, लेकिन नीचे का जो सिस्टम है वो एक एसओ समझते हैं, जो नीचे का सेक्शन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर होता है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर मिनिस्टर। अगर एक एसओ नीचे एक ऑब्जेक्शन लगा ले तो सारी फाइल ऊपर तक रुक जाती है, क्योंकि कल कोई भी दाना खड़ा हो जाए कि जी एसओ ने तो ऑब्जेक्शन लगाया था। मतलब भाई फ्यूचर तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ना, आगे की तो नहीं, रूहानी इल्म तो मेरे पास नहीं है कि मैं आगे बता दूं क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन चीज़ों को ठीक करने के लिए अब ये भी हो ही गया ना। आप ये कह रहे नहीं हुआ, मुझे नाराजगी इस बात की है कि ये इतने टाइम से क्यों। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में रात गए चाय पीने निकल आए। बिलावल भुट्टो F7 जिन्ना सुपरमार्केट पहुंचे और पार्टी कारकुन के ढाबे पर चाय पी। अवाम की बड़ी तादाद भी बिलावल भुट्टो को देखने पहुंच गई। PP रहनुमा कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार टांगों और हाथों से महरूम तालिबा किरण की आवाज़ बन गए। तालिबा किरण इश्तियाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस्मान बुज़दार ने फौरी तालिबा की माली इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने तालिबा को माली इमदाद का चेक दिया। वज़ीर आला ने कहा कि किरण इश्तियाक मेरी अपनी बेटियों की तरह है, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ भी है और रियासत मदीना की जिम्मेदारी भी। किरण इश्तियाक कौम की बाहिम्मत बेटी है, उन्होंने नामसाद हालात के बावजूद हौसला नहीं हारा। ARY लगूना DHA सिटी कराची के सार्फिन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के इस जदीद और मुनफरिद रियल एस्टेट मंसूबे की बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। For a perfect family life,
जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे, ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। और पोलियो से माजूर होने वाले गुजरांवाला के रिहायशी कासिम ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम फरीद। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। उस वक्त मैंने नहीं पी, मैं ज़िंदगी में पछता रहा हूँ। पोलियो से मजूरी के बावजूद गुजरांवाला का रहायशी मोहम्मद कासम किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो शुक्र अल्लाह का जैसे भी गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे भाइयों से भी मैं ये कहता हूँ वो भी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह देता है, कि मांगने से कुछ नहीं बनता। कभी भी मैंने किसी के आगे सवाल नहीं किया। मोहम्मद कासम का कहना है कि वो सुबह सवेरे घर से निकलता है और शाम तक अपनी साइकिल को एक टांग से चलाकर मुख्तलिफ दुकानों पर डिस्पोजेबल ग्लास और शॉपिंग बैग फरोख्त करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता है। सुबह में नमाज पढ़ के निकलना वा, तो गिलास शापड़ मैं चीज़ें जाके सेल करना डोर टू डोर। मोहम्मद कासम के बच्चों का कहना है कि इनका बाप सख्त मेहनत करके तलीम समेत इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। मेरे पापा सुबह काम पे जाते हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ता हूँ और मेरी उम्मीद है मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूँ। मोहम्मद कासम ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो मुस्तकिल मजदूरी से महफूज रह सकें। पोलियो का शिकार कासम जैसे बाहिम्मत शहरी माशरे के दीगर अफराद के लिए एक मिसाल हैं। कैमरामैन शुएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, ARY न्यूज़ गुजरांवाला। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सियासी इख्तिलाफात को बलाताक रख के जॉइंट रेजोल्यूशन पास करवाया। तो ये एक नेक शुगुन है कि जब कोई इस किस्म की क्राइसिस आ जाती है तो फिर लोग अपनी सियासत को पीछे रख के कोई भी इशूज़ पे आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम सूरत हाल में हैं, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम कौमी इशूज़ की तरफ आ जाए। भाई सियासत तो होती रहेगी, आपके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, आप जो है ना असम्बली में करते रहें, जो भी हो, लेकिन वो इशूज़ जो क्रॉनिक इशूज़ हैं, जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी की चैलेंजेस है, जो इस वक्त हमारे माहौलियात के हवाले से हमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, हमारे पानी के मसाइल है, फूड सिक्योरिटी के इशूज़ है, कश्मीर का इशू है, यानी जितनी इशूज़ हैं इस पे पार्लियामेंट पे जो है ना मैं खुल के तैयार हूँ कि डिबेट करे, डिस्कशन करे। और मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का फ्लोर जो है इसके लिए। इमरान खान साहब एक मिनट चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुछ देर बाद एक धमकी दे देते हैं अपोजिशन को। क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है वो इसमें संजीदा नहीं है कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए? देखिए, दो चीज़ें, एक हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र होता है और अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र होता है। मैं ये कहता हूँ कि आपका जो नुक्ता नज़र हो फ्लोर पे अपनी बात भी करें और दूसरी की बात भी सुने। ये ना हो कि आप अपनी बात करके जो ना वॉकआउट करें और फिर दूसरे को बात सुनने ना दे। एक ऐसा माहौल हो कि उसके ऊपर खुल के डिस्कशन हो, फिर आवाम समझे और उसका वो फैसला करे कि कोई ठीक है कौन गलत है। तो इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं